So, Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. Welcome to the Bansal classes, Magam. Today we are going to talk about the most important topic on Jammu and Kashmir geography, that's called as climate of Jammu and Kashmir. My dear students, when we talk about climates, we have 4 to 5 subcategories of climate of Jammu and Kashmir on the basis of latitudinal variations, on the basis of altitude and continuity. We have a concept called distance from the sea, and distance from the sea is called as continuity. It means that if a place or a geographical location is far away from the sea or the ocean, the climate of that particular region shall have the effect in influence with the moderating effect of the oceans and the seas as well. So that's called as continuity. But before moving forward, we need to look at the geographical locations of different places on Earth. First of all, we have equator, that is 0 degree latitude on Earth, and northwards we have Tropic of Cancer, northwards more we have Tropic of, southwards we have Tropic of Capricorn, and northwards we have Arctic Circle, and the south we have Antarctic Circle as well. Look, the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, this is called to be tropical zone or torrid zone. Northwards we have from Tropic of Cancer to Arctic region, that's called a subtropical region. Likewise, in the southern directions, we have from the Tropic of Capricorn towards the Antarctic Circle, that's called a subtropical region as well. The climates in these regions vary as per the altitudinal variations, but when we talk about Jammu and Kashmir, it has been divided into 3 main categories. One is on the basis of latitudes. When we talk about latitudes, the climate of Jammu and Kashmir is said to be subtropical and temperate climatic patterns. Subtropical मतलब बच्चा ये होता है कि जहां पर subtropical climate किसी भी रीजन में subtropical zone में आता हो, उसका winter mild से cold की तरफ रहेगा inclined, लेकिन summers hot and humid रहेगी. इसका मतलब है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. लेकिन वहीं पर अगर हम टेम्परेट जोन्स की बात करें, टेम्परेट क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट होता है जहां पर विंटर्स हार्श हो जाते हैं लेकिन समर्स मॉडरेट तरीके से चलेंगे. मतलब न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है, दरमियान में होगा टेम्परेचर, यानी इन बिटवीन द टू, दैट्स कॉल्ड एज टेम्परेट जोन. एंड जम्मू कश्मीर का जो जम्मू वाला हिस्सा है टुवर्ड्स शिवालिक्स, दैट फॉल्स इनटू सब ट्रॉपिकल कैटेगरी. क्यों? क्योंकि शिवालिक्स के साउथ में जो जम्मू प्लेन्स हमारे पास है, उनका क्लाइमेट रिजेंबल करता है टू द क्लाइमेट ऑफ पंजाब. दैट्स व्हाई वी से जम्मू, खासकर साउदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू, वी हैव monsoonal type of climate. And second category is on the basis of altitudes. It means कि जब हम हाइट बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारे टेम्परेचर में है वो मिनिमम डिग्रीज का टेम्परेचर ड्रॉप किया जाएगा. That's called as lapse rate. मतलब ये कि जब हम हाइट को इंक्रीज करेंगे कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज के साथ, कुछ पर्टिकुलर रेट्स के साथ, हमारा टेम्परेचर वेरिएट कर जाएगा. से फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मुझे मदाम की सतह जमीन से ऊपर गुलमर्ग की ओर बढ़ना है, ऊपर गुलमर्ग की ओर जाना है. से फॉर एग्जांपल, मदाम में इस वक्त अगर टेम्परेचर 50 डिग्रीज पर है, 50 डिग्रीज पर मदाम में टेम्परेचर है, टेम्परेचर का उसूल होता है लैप्स रेट में कि जब 1000 मीटर्स की बुलंदी हो, टेम्परेचर 6 डिग्री ड्रॉप कर जाएगा. अगर हम मिनट्स में कर लें, वहीं पर अगर मीटर्स में काउंट कर ले, 165 मीटर्स हायर जाने की वजह से टेम्परेचर में 1 डिग्री का गिरावट देखने को मिल जाता है. दैट्स कॉल्ड एज लैप्स रेट, यानी टेम्परेचर का गिरावट विद इंक्रीज इन द हाइट, दिस कॉल्ड एज लैप्स रेट. लेकिन ये किस रेट से गिरता है? दैट्स 6 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये कि अगर मादाम में अभी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर चल रहा है, वहीं पर अगर मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है गुलमर्ग की ओर, गुलमर्ग में कितना टेम्परेचर रहेगा? अगर हम ऑल्टीट्यूड, से फॉर एग्जांपल, अगर हम गुलमर्ग का ऑल्टीट्यूड 2500 मीटर्स कर दे, यानी 2.5 किलोमीटर्स कर दे, so 1000 मीटर्स इक्वल्स टू व्हाट? 1 किलोमीटर. इसका मतलब कि मादाम की सतह जमीन से लेकर गुलमर्ग तक जो मेरा डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो कितना है? 2.5 किलोमीटर्स.
अभी लैप्सरेट के हिसाब से अगर हम देखें, हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर का गिरावट कितना है? 6 डिग्री। तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बच्चा? 12। अगर 12 हो रहा है 2 किलोमीटर पे, मुझे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बाय 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर मैं और बढ़ाता हूं, अगर मैं हाइट बढ़ाता हूं, टेम्परेचर गिर जाएगा। कितना बढ़ाऊं? 500 मीटर्स। 500 मीटर्स। अगर 1000 मीटर की बुलंदी पर टेम्परेचर 6 डिग्री माइनस हो रहा है, तो 500 मीटर हाइट बढ़ने की वजह से कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। इसका मतलब कि अगर मादाम में अभी 50 डिग्री है, गुलमर्ग में कितना रहेगा? कमोबेश। गुलमर्ग में कमोबेश रहेगा 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री माइनस हो रहा है। दैट्स द लैप्स रेट। वहीं पर किसी भी चीज पर, चाहे अमरनाथ हो, चाहे सोनमर्ग हो, किसी भी चीज पर अगर उसका ऑल्टीट्यूड हमें पता हो और सतह जमीन पर हमें टेम्परेचर मालूम हो, तो हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ लैप्स रेट। ये एक तरीका है। इसी वजह से जितना भी एरिया जम्मू कश्मीर का है, जितना भी एरिया जम्मू कश्मीर का है, अगर साउथर्न रीजन की बात करें, साउथ से लेकर नॉर्थ तक जाया जाता है। इट मींस अगर हम जम्मू प्लेन से ऊपर की तरफ जाएंगे, जम्मू प्लेन में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, लेकिन ऊपर कश्मीर की ओर कम होता हुआ नजर आ जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि लैप्स रेट की वजह से हो रहा है ये सब। यानी हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट, यानी हाइट इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर लैप्स रेट के हिसाब से डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज द फंडामेंटल रूल। यही वजह है कि विंटर्स में, जो जम्मू वाला रीजन है, उसका जितना भी टेम्परेचर है वो कश्मीर के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। ये वजह है मैक्सिमम लोग हिजरत करते हैं, खासकर विंटर के जोन में, विंटर के मंथ्स में। कहां की तरफ? यूपी एरियाज में, दिल्ली वाले एरियाज में और जम्मू वाले एरियाज में। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर ठीक ठाक नजर आ जाता है। असल में बात ज्योग्राफी की है, असल में बात लैंडस्केप की वजह से हो रहा है, असल में बात रिलीफ फीचर्स और फिजिकल फीचर्स की वजह से हो रहा है। लैप्स रेट की बात है, लैप्स रेट की बात है। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा जहां जहां से नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर बढ़ा जाएगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ जब भी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। वहीं पर अगर इसका उल्टा किया जाएगा, यानी हमें साउथ से ऊपर उठना है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। यही वजह है कि जब हम मागाम से गुलमर्ग की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। यहां पर वही एग्जाम्पल है। इसी वजह से जम्मू प्लेन्स में, खासकर विंटर में, जो हम जम्मू का क्लाइमेट ले रहे हैं, दैट सब ट्रॉपिकल इन नेचर। सब ट्रॉपिकल होता ही वहां पर है जहां पर विंटर्स लेस हार्श होते हैं, यानी माइल्ड मॉडरेट विंटर्स होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम समर्स की बात करें, टेम्परेचर पीक पर रहेगा 40 से 45 डिग्री के दरमियान। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल टेम्परेट। वहीं पर अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर वाले जोन की बात करें, यहां पर जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है विंटर्स में, वो कम रहेगा, लेकिन समर्स में मॉडरेट रहेगा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। इसी को बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। तो एक तरीका होता है ये, किसी भी क्लाइमेट को, किसी भी रीजन को, किसी भी एरिया को क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करना। हालांकि कश्मीर की बात अलग है, यहां पर कश्मीर भी सब ट्रॉपिकल जोन में आता, लेकिन हिमालय की वजह से नहीं आ रहा है। हिमालय के पर्सपेक्टिव में, हिमालय के रेफरेंस की वजह से नहीं आ रहा है। वरना जो हमारा लैटिट्यूड है दैट इज 33-35 के आसपास है, तो वो जो ऐसा लैटिट्यूड है जो 23.5 से लेकर 35 के दरमियान हो, दैट सब ट्रॉपिकल इन नेचर। वहीं पर अगर कश्मीर का लास्ट वाला लैटिट्यूड 35 पर खत्म हो रहा है, तो टेक्निकली ये सब ट्रॉपिकल जोन में है, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों? हिमालय की वजह से आ रहा है ये सब। तो इतनी वेरिएशंस क्लाइमेट में, टेम्परेचर में, विंड स्पीड में, उसके दबाव में, प्रेशर में, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? हिमालय, शिवालिक, पीर पंजाल रेंज। इस वजह से जम्मू कश्मीर का जितना भी क्लाइमेट है वो जम्मू में सब ट्रॉपिकल रहेगा, लेकिन कश्मीर में उसी के कंपैरिजन में टेम्परेट क्लाइमेट नजर आ जाता है। क्लियर? दूसरा मसला होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, देखो जम्मू कश्मीर से नीचे जो इंडियन ओशन है, उसकी डिस्टेंस है वो काफी ठीक ठाक लेवल पर है। वो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर से समंदर की दूरी एक मॉडरेट लेवल पर है, एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर है। वहीं पर अगर हम इसके वेस्ट साइड में बात करें, क्योंकि यहां से हमारा पाकिस्तान है, यहां से हमारा ईरान है, ऊपर इराक, यहां से वेस्ट की ओर चलते हुए यहां पे आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी। एक फेनोमेना चलता है जम्मू कश्मीर में, खासकर विंटर्स में। यहां पर विंटर्स में रेनफॉल, स्नोफॉल ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन क्या है? रीजन इंडियन ओशन ही है, क्योंकि इंडियन ओशन से जितनी भी हमारे पास हवाएं उठती हैं, वो यहां से पहाड़ों के होते हुए, पहाड़ों के चलते हुए कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? अरावलीज के रेंज में आ जाती हैं, सतपुराज के रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो हिमालयन एक रेंज आ जाती है दरमियान में, शिवालिक वाली रेंज या पीर पंजाब वाली रेंज, वो इन हवाओं को, मानसूनल विंड्स को कश्मीर आने से रोकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, तो वो अपना मॉइस्चर जो है यहाँ मेडिटेरेनियन सी से उठाकर
खासकर विंटर में यहां से विंड्स जनरेट होती हैं मेडिटेरियन सी से, वो चलते हुए ईरान से गुजर जाते हैं, इराक से गुजर जाते हैं, अफगानिस्तान से गुजर जाते हैं, पाकिस्तान से गुजर जाते हैं। लास्ट मोमेंट पर अपना सारा का सारा मॉइस्चर डिपॉजिट कहां पर कर देती हैं बच्चा? डिपॉजिट वो कश्मीर वाले रीजन में कर देती है, जम्मू वाले रीजन में कर देती है। यही वजह है कि जितना भी रेनफॉल, जितना भी स्नोफॉल कश्मीर वाले जोन में और जम्मू वाले जोन में हो जाता है, वो सिर्फ इनके रिस्पेक्ट में हो जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स। इन्हीं का नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी एरिया का क्लाइमेट अगर जानना हो, सबसे पहले उसके डिस्टेंस समुद्र के साथ कितनी जुड़ी हुई है वो तय किया जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारा मालाबार कोस्ट है, यहां पर हमारा कोंकण वाला रीजन है, यहां पर हमारा कोरमंडल कोस्ट है, यहां पर हमारा उड़ीसा वाला कोस्ट है, ठीक। इसकी डिस्टेंस समंदर से बहुत कम है। इसका मतलब है अगर दरमियान लैंड मास के दरमियान लैंड मास के कंपैरिजन में समंदर की जो लेवल है, समंदर की जो कुर्बत है वो करीब तर है, इसका मतलब है वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाएगा, क्लाइमेटिक पैटर्न बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट, इसका मतलब है पानी में अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है, खासियत रखी है, ये देर से गर्म होता है, देर से सर्द भी हो जाता है। उस देर से गर्म होने में और देर से हीट को रिलीज करने में इस एक इंपैक्ट की वजह से आसपास जितना भी लैंड मास होता है उसमें एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है मेडिटेरियन क्लाइमेट। और अगर खासकर बात की जाए, मेडिटेरियन क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट होता है जहां पर विंटर्स में ठीक ठाक बारिश होगा, लेकिन समर्स में ज्यादा नहीं होगा। इसी वजह से हम कहते हैं, जब इस चीज का कंपैरिजन कश्मीर के साथ किया जाता है, यहां भी तो वही हो रहा है, यहां भी तो विंटर्स में समर के कंपैरिजन में, समर के बरक्स विंटर्स में रेनफॉल भी हो जाएगा, स्नोफॉल भी हो जाएगा। तभी हम ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर का क्लाइमेट कभी कभी मेडिटेरियन बन जाता है। बनना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेडिटेरियन क्लाइमेट वहां पे हो जाता है क्रिएट जहां पर समंदर के साथ कुर्बत है, जहां पर समंदर नजदीकी में है, लाइक मालाबार कोस्ट एग्जाम्पल है, केरला, ठीक है, महाराष्ट्र हमारे एग्जाम्पल है, ओडिशा हमारे एग्जाम्पल है, क्योंकि समंदर के साथ बहुत कुर्बत में है। कश्मीर वाला जोन समंदर से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक। कश्मीर वाला जोन, जम्मू वाला जोन समंदर से बहुत ज्यादा दूर है, लिहाजा वो मेडिटेरियन रीजन यहाँ पे बनना नहीं चाहता, लेकिन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मेडिटेरियन सी के रिस्पेक्ट में। इसी वजह से जो यहाँ से विंड्स निकल के आती हैं, उनका सारा का सारा मॉइस्चर कहां पे लोड हो जाएगा लास्ट में? कश्मीर वाले रीजन में और जम्मू वाले रीजन में। तभी हम कहते हैं, चूंकि अगर कुर्बत नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है? क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कहां से पड़ रहा है? इस मेडिटेरियन सी से। दैट्स व्हाई वी से समटाइम्स द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज सेड टू बी व्हाट? मेडिटेरियन इन नेचर, ठीक। ये हो गया हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन। चौथा क्लासिफिकेशन बच्चा इसमें यह है, जब भी हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालय के रिस्पेक्ट में हमारा क्लाइमेट काफी हद तक इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम ये कहें कि जो हमारी ग्रेटर हिमालयन रेंज है कश्मीर के नॉर्दर्न वाले साइड से, वो कोल्ड साइबेरियन विंड्स को या सेंट्रल एशियन विंड्स को कश्मीर आने से रोकती है। नीचे कश्मीर वाले रीजन में, यानी पीर पंजाब और शिवालिक वाले रेंज में, जो इससे नीचे इसके साउथ में जो विंड्स चलती हैं शिवालिक के साउथ में, वो मूनसून विंड्स कहलाती हैं। वही मूनसून विंड्स कश्मीर आने से रोकती हैं, किसके कंपैरिजन में आकर? पीर पंजाब के कंपैरिजन में आकर। से फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून यानी मानसून विंड्स चल रही है, वो कश्मीर तक आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ से हमारा जो इंपॉर्टेंट रेंज है, दैट्स कॉल्ड एज पीर पंजाब रेंज, वो मिडिल हिमालय का पार्ट है। वही ऊपर हमारे पास शिवालिक का रेंज है, नीचे इसके शिवालिक रेंज है। एक तो साउथ वाले रीजन से मानसून विंड्स कश्मीर तक आ नहीं सकती। ऊपर जो हमारे पास नॉर्दर्न हिमालयस हैं, वो कोल्ड साइबेरियन विंड्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम एंटरिंग इनटू कश्मीर। दैट्स व्हाई वी से द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज सेड टू बी कॉन्टिनेंटल एंड टेम्परेट इन नेचर एज वेल। अगर हिमालयस नहीं होते, सारा का सारा रीजन खासकर नॉर्थ इंडिया डिजर्ट होता। वजह ये है, समझ में आ रहा है? वजह ये है, अगर हमारे पास हिमालयस ना होते, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरी 7 स्टेट्स सारी की सारी डिजर्ट बन जाती, रेगिस्तान बन जाते। हिमालयस की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेटिक पैटर्न बन रहा है, दैट इज द प्राइम कॉज व्हाई द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज व्हाट इट इज। So this was all about today's topic. I hope you liked the lesson and you enjoyed it too. Thank you so much.